हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि तरण आदर्श ने यहाँ पे रिव्यू दिया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तरण आदर्श का रिव्यू आ चुका है आवारापन 2 का, और बहुत ही तगड़ा उन्होंने रिव्यू दिया है। और मैंने पहले भी बोला था कि आवारापन 2 के रिव्यूज़ ज़बरदस्त आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एडवांस बुकिंग तो बाप लेवल की वैसे भी चल ही रही है। क्या कहते हैं तरण आदर्श, उसके उनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने रिव्यू में कहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम यहाँ पे करने वाले हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कहा है स्मैश हिट, 5 में से 4 रेटिंग दी है। उन्होंने कहा है इमरान हाशमी रिटर्न्स एज अ शिवम पंडित, वॉट अ रिटर्न इट इज़। ही इज़ द सोल ऑफ आवर अपन टू मास अपीलिंग मोमेंट्स प्लस ट्रिमेंडस नॉस्टैल्जिया वैल्यू सुअर शॉर्ट सक्सेस। आवर अपन टू रिव्यू। मैंने तो पहले ही बोला था भाई कि इसके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, और तरण आदर्श भी अच्छा ही रिव्यू देगा भाई। तरण आदर्श को मैंने देखा है हमेशा कि जब भी वो फिल्म को लेके बात करते हैं। अब देखो, उन्होंने कहा है कि आवारा पंटू का सोल इमरान हाशमी। और जब मैंने सोल की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने रिव्यू दिया था, उसमें भी तो मैंने ये बात कही ना भाई, इमरान हाशमी इज़ द सोल ऑफ आवारा पंटू। इमरान हाशमी के वजह से, और स्पेशली शिवम पंडित का जो कैरेक्टर है, वो जिस लेवल पे प्रेजेंटेशन किया गया है, मैंने ये बात बार बार क्यों रिपीट की कि मुझे सम हाउ थोड़ा सा डाउट इस मामले में भी था कि जो शिवम पंडित का जो कैरेक्टर है क्या, और जो डायरेक्टर है स्पेसिफिक, क्योंकि जब आपका डायरेक्टर यहाँ पे चेंज हो जाता है तो एक तो फिर सब कुछ चेंज होता है। ऐसा डर होता है कि भाई कहीं ये अपना ओवरऑल भी चेंज ना कर दे पूरा का पूरा जो एक। अब यहाँ पे देखो, तरुण आदर्श ने बहुत ज़बरदस्त लिखा है, इमरान हाशमी रिटर्न्स एज ए शिवम पंडित and what a return it is. He is the soul of our Appan 2 mass appealing movements plus tremendous nostalgia value. Sure short success. Our Appan 2007, the first installment, has developed a cult classic status over the years. Matching those expectations is no easy task, especially since the magic created by Imran Hashmi, director Mohit Suri, and Vishesh Films remains a strong today. What stands out to the most our Appan 2 Shivam story this time, his bond with child take center stage. The narrative takes a completely different path, with action pieces generally sprinkled across the proceeding. The film starts off very well with the child trafficking issue clearly spelled out right at the outset. However, as it progresses, the narrative deviates into several subplots that could have been avoided. Director Nitin Kakkar shoulders a tremendous responsibility, and his credit handles sequences smartly. The car chase on street of Bangkok at very start, the backstory of Disha, Anirudh, and Puran's parents, the final. Additionally, he smartly incorporates flashes from the first part, leveraging the recall value and nostalgia factor. These moments seamlessly connect the two films while giving fans sense of familiarity. Writers Bilal Siddiqui and Vishesh Bhatt ensure that the backbone of the story, Shivam Pandit, remains the focal point, and the writers also know when to hold back and when to hit hard, resulting in several sequences that genuinely stays with you. Imran Hashmi is superb as Shivam. He brings vulnerability, intensity, and live-in quality to the character, making Shivam's journey deeply affecting. This is one of the most compelling performance of his filmography. Disha delivers sincere and emotionally charged performance, while Shabana Azmi deserved more screen time with some punch-packed sequences that match her talent. पुरान गब्बी एज एंटागोनिस्ट इज़ इफेक्टिव। इस बंदे के बारे में मुझे नाम नहीं पता था, इसको लेकर मैंने स्पेशल मेंशन किया था, बट गोज ओवर बोर्ड एट प्लेसेस। अनिरुद्ध enacts his part with conviction. Surinder and Vijayan lend able support. The music of Avarapan 2 is definitely plus, although comparisons with first part is inevitable. Final word. An outstanding Imran Hashmi performance and an out and massy narrative makes Avarapan 2 stand out. There is no stopping this one at the box office. ये बंदे ने पहले ही बोल दिया ब्लॉकबस्टर। यही मैं बार बार बोलते आया हूँ भाई। कलेक्शंस को लेके भी ये बोल रहे हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं फैक्ट है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था भाई, मैं सीधी बात बोला ना, ये फिल्म सैयारा वाला मैजिक करेगी। और इसमें एक एडवांटेज इसका ये होगा कि उसमें एक्शन नहीं था, इसमें एक्शन भी है, और इसमें एक्शन थ्रिलर ड्रामा भी है, रोमांस भी है।
उसमें सिर्फ रोमांटिक फिल्म थी, वो एक लव स्टोरी थी। यहाँ पे लव स्टोरी भी है और बहुत से ऐसे फैक्टर्स है फिल्म में, ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो तरण आदर्श ने 5 में से 4 रेटिंग दिया है। आई थिंक दिस इज़ द वेरी परफेक्ट रिव्यू बाय तरण आदर्श। आजकल मैंने देखा है बहुत सी फिल्मों को वो हमेशा ही परफेक्ट रिव्यू देते हैं। तो अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगा हेटर्स को कि चूड़ियाँ पहन लो, कुछ नहीं होने वाला है। जितना भौंकना है भौंक लो इस फिल्म के अगेंस्ट, बट ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। देखना ये है सिर्फ अब कि ये क्या सैयारा वाले एंगल पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर कम से कम कलेक्शन में भी ये 300 नेट 200 नेट तो गारंटी जा रही है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर स्टेटस तो इसको 300 नेट पे मिल जाएगा, ब्लॉकबस्टर स्टेटस तो इसको 200 नेट पे भी मिल जाएगा। सिर्फ देखना ये है कि ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये 150 नेट के ऊपर तो कहीं से भी जा रही है, वाहियात से सिनारियों में भी। पर रिव्यूज़ इसके अच्छे आने वाले हैं और आराम से 200 नेट प्लस, यानी कि ब्लॉकबस्टर स्टेटस इस फिल्म का कन्फर्म है। तो हेटर्स को मैं यही कहूँगा कि चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है, ओके। या फिर तालियां बजाओ रेलवे स्टेशन पे, कोई अब आपको इस फिल्म को रोकने नहीं वाला है, रोक नहीं पाएगा। दिस विल बी ह्यूज ब्लॉकबस्टर एंड दिस इज़ द इमरान हाशमीज़ ग्रैंड एवर कम बैक, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ कि अब जन्नत 3 पे थोड़ा सा वर्क किया जाए, मर्डर पे वर्क किया जाए, राज पे वर्क किया जाए। इमरान हाशमी ने भी अब वो ट्रिक यूज़ करनी चाहिए जो अक्षय अजय कभी कभी यूज़ करते हैं, इवन सनी भी करता है, कि अपने नॉस्टैल्जिया कुछ फिल्मों को सीक्वल बना दो। कोई बुराई नहीं है भाई सीक्वल बनाने में, अगर फिल्म में लोग अगर इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं तो धमाका हो जाता है। आवारापन 2 इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। कहाँ पे आवारापन शायद लाइफ टाइम 12 करोड़ गई थी, इसका एडवांस बुकिंग ही शायद 9.5 करोड़ के ऊपर हुआ है। 25 से 30 करोड़ का डे 1 करने वाली है, ये क्लियरली देखने को मिल रहा है। और ये होता है और इवन विथ क्लैश, तो इससे पता चलता है कि लोग कितना इंतज़ार कर रहे थे। और सच में 19 साल का इंतज़ार बहुत होता है दोस्तों शायद, और वही एक पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया फैक्टर आ गया। मिलेनियल्स को फुल क्रेडिट जाता है, जेनजी वालों को भी बाद में समहाउ अब लग रहा होगा कि यार ये फिल्म कुछ अलग है, वो भी शायद अब सपोर्ट में उतर जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भाई जब दोनों साथ आ जाए तो और क्या ही चाहिए। सो भाई और मैंने आपको मेरे रिव्यू में भी बोला ना यार कि सॉन्ग्स इसको पकड़ के रखते हैं। स्टोरी टेलिंग को अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे यार स्टोरी इधर उधर, बट जो कैरेक्टर शिवम पंडित का बार बार जब स्क्रीन पे आता है तो आपको अगर थोड़ा सा इधर उधर भी स्टोरी जाते हुए दिखाना, पर वो जो बैकग्राउंड में सॉन्ग्स बजते रहते, सॉन्ग्स ने इस फिल्म को बहुत ताकत दी है भाई। सॉन्ग्स को आपको फुल क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो सॉन्ग्स बहुत सी कहानी को कुछ जगह पे बचा जाते हैं, मेरा ये कहना है। सो बाकी 5 में से 4 रेटिंग, बहुत अच्छा रेटिंग दिया है तरण आदर्श ने। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस फिल्म के बारे में ज़रूर बताइए। और तरण आदर्श भाई सर जी बहुत ज़बरदस्त रिव्यू दिया आपने। टेक केयर गाइज, लव यू एंड शेयर द वीडियो गाइज, टेक केयर।